تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گچیبولی میں مائیکروسافٹ کے نئے کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے گچیبولی میں مائیکروسافٹ کا ایک کیمپس قائم کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو اور مائیکروسافٹ کے نمائندوں کے ساتھ نئے کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ایک نیا مائیکروسافٹ کیمپس قائم کرنے پر کمپنی کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت مصنوعی ذہانت کا ہے اور مائیکروسافٹ کی توسیع سے نوجوانوں کو مزید ملازمتیں میسر آئیں گی۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں مائیکروسافٹ کے نئے کیمپس کے قیام کو آئی ٹی صنعت کے سفر میں ایک شاندار سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مائیکروسافٹ کی شہر حیدرآباد کے ساتھ دیرینہ شراکت داری ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مائیکروسافٹ کے ساتھ شہر میں اے آئی سینٹر قائم کرنے کے لیے پہلے ہی ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کمپنی کے ہندوستان میں 25 سال مکمل کرنے پر بھی خوشی ظاہر کی اور نمائندوں کو مبارکباد پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ مائیکروسافٹ اور تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 500 سرکاری اسکولوں میں مصنوعی ذہانت پر مبنی تعلیمی کورسز متعارف کروائے گی۔ I congratulate you as we stand at the new Microsoft facility built in 1.1 million square feet in Hyderabad. It's a milestone in the journey of Microsoft of Hyderabad. Microsoft and Hyderabad have a long partnership. Microsoft India recently celebrated 25 years journey. You have created global innovation and impact from Hyderabad. I'm happy to share that this new facility and expansion by Microsoft will generate thousands of high-value jobs, empowering our youth. AI is the future. Microsoft and State Government of Telangana are now partners to launch Advantage Telangana, which includes AI Foundations Academy. With this partnership, Telangana and Microsoft will introduce AI education to 500 government schools and also use AI for governance and public services. This investment will also strengthen our startup ecosystem and give access to mentorship, AI tools and global network. I say with pride that Microsoft will establish an AI center of excellence in collaboration with my government. This center will develop cloud-based AI infrastructure, including an AI knowledge hub. I thank the leadership team of Microsoft for their continued trust in Telangana. Your commitment to innovation matches our vision, Telangana Rising. Together, we will script a great success story. Thank you, one and all. وقف بل پر مشترکہ پارلیمانی رپورٹ پیش کیے جانے کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ لوک سبھا اراکین پر مشتمل ایک وفد نے اسپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے بل کو لے کر پائے جا رہے اعتراضات اور اختلافات سے واقف کروایا ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے لوک سبھا میں وقف بل پیش کیے جانے سے قبل احاطہ پارلیمنٹ میں میڈیا کو بتایا کہ لوک سبھا کے اراکین پر مشتمل ایک وفد نے آج صبح اسپیکر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اختلافاتی نوٹس میں بہت سے صفحات اور پیراگراف میں ترمیم کی گئی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے امید جتائی کہ اسپیکر اور جے پی سی کے جوائنٹ سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کے بعد اراکین کے ذریعے اٹھائے گئے اعتراضات کو بل میں شامل کیا جائے گا۔ جب رپورٹ پیش ہوگی تو اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ حیدرآباد ایم پی کا کہنا ہے کہ وفد ترمیمی بل نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 29 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل وقف کو بچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے برباد کرنے اور مسلمانوں سے چھیننے کے لیے ہے اور وہ اس بل کی مذمت کرتے ہیں۔ جو ہمارے آنریبل ممبرز نے بھی کہا ہے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی وفد کے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ ایک بات آپ سمجھیے کہ یہ وفد کا جو بل لایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف نہ صرف انکانسٹیٹیوشنل ہے، فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 29 کا گریو وائلیشن ہے۔
ये वफ़ को बचाने के लिए नहीं है, वफ़ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो JWC में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये JWC की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब की रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि दोबारा सर्वे नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसे अफराद जिन्होंने सर्वे में मालूमात फराहम नहीं की हैं उन्हें मालूमात फराहम करने का मौका दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी में शामिल न होने वालों को एक और मौका फराहम करने का ऐलान किया है। अवाम 16 फरवरी ता 28 फरवरी सर्वे के अमले को अपनी तफसीलात फराहम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की कराए गए मर्दमशुमारी के सर्वे ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। दोबारा सर्वे किए जाने की अफवाहों पर पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि दोबारा सर्वे नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी मालूमात फराहम नहीं की हैं उन्हें मालूमात फराहम करने का एक और मौका दिया जा रहा है। उन्होंने BRS के कायदीन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि BRS के जिन रहनुमाओं ने सर्वे में हिस्सा नहीं लिया वो गैर जरूरी इल्जामात लगा रहे हैं। దేశంలోనే అన్ని రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకత్వం వహించే విధంగా రోల్ మోడల్ గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటికి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని పంపి 1,15,00,000 కుటుంబాల్లో సమాచారం స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చినటువంటి 1,12,00,000 కుటుంబాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ పరిక్రమలో దాదాపు 3.1% కొంతమంది తమ సమాచారాన్ని ఇవ్వలేదనే ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సందర్భంగా వారికి కూడా అవకాశం ఇవ్వాలని రేపు ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 28వ తేదీ వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ 3.1% అయితే కొంతమంది నిన్న TRS పార్లమెంట్ సభ్యుడు రాజ్యసభ రవిచంద్ర అంటా ఉన్నాడు మా డిమాండ్ మేరకు రీసర్వే జరుగుతుంది। ఇది రీసర్వే కాదు, ఇది ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో ఎవరైతే పేర్లు నమోదు చేసుకోలేదో వాళ్ళు నమోదు చేసుకోవడానికి మరొక అవకాశాన్ని 10 రోజుల పాటు ఇచ్చే కార్యక్రమం 12 రోజుల పాటు। దాని తదుపరి మార్చి మొదటి వారంలో हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने शहर में 42 गैर मजाज इश्तिहारी खंभों को हटा दिया। सराय ने बताया कि हाइड्रा के अहदेदारों ने जुमेरात को 42 गैर मजाज इश्तिहारी खंभों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें प्रकाश आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, लीड स्पेस, यूनी एड्स के अलावा छोटे इश्तिहारी एजेंसीज जैसे कि PVS एड्स, आईकार एड्स, स्पेस एड्स, सुरभि एड्स, UK एड्स, B&M एड्स, साइनार एड्स वो दीगर शामिल हैं। अहदेदारों ने 42 यूनिपोल्स में से 12 को उटपल्ली, रालागुड़ा, कोतवालगुड़ा से बर्खास्त किया है, जबकि 11 पोल्स तंडोपल्ली, मथुरा नगर, गोलापल्ली और सिकंदराबाद में हटाए गए हैं। कानून नाफिज करने वाली टीमों ने ऐसे होर्डिंग्स को भी हटा दिया है
जिनके इजाज़तनामे ख़त्म हो चुके हैं और जिनके पास सरकारी इजाज़तनामे नहीं है। ओहदेदारों ने कहा है कि वो रियासती हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद इश्तिहारी पॉलिसियों पर मज़ीद वजाहत फराहम करेंगे। हाइड्रा की जानिब से ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त की गई है जब एजेंसी बैरूनी इश्तिहारात के लिए क़वायद व ज़वाबित नाफिज करने और उन्हें म्यूनसिपल क़वायद व ज़वाबित की तामील करने का इरादा रखती है। वैलेंटाइन डे के मौके पर कुछ नौजवान जोड़े सैर व तफरीह के नाम पर अजीब व गरीब और ख़तरनाक स्टंट कर रहे हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए सड़कों पर ख़तरनाक स्टंट करना एक कल्चर बन गया है। 14 फरवरी को यौम आशिक़ा मनाया जाएगा और कुछ जोड़े सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियोस पोस्ट करते हुए दावा कर रहे हैं कि वो इस यौम आशिक़ा के मौके पर हैरत अंगेज़ कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह से ख़तरनाक मोटरसाइकिल स्टंट्स किए जा रहे हैं। उनके लिए ये सब तफरीह और शोहरत हासिल करने के ज़राए हैं, लेकिन अगर ज़रा सी भी गफलत हुई तो ये हादसे का सबब बन सकती है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने इस वीडियो पर तबसरा किया है कि सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए सड़कों पर ख़तरनाक स्टंट करना जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह की मुहिम जोई हादसात को दावत दे सकती है। दूसरी जानिब आज शब बारात मनाई जाएगी। रात में जागने के नाम पर कुछ नौजवान सड़कों पर मोटरसाइकिलें दौड़ाएंगे, स्टंट करते नजर आएंगे। वालिदैन से गुजारिश की गई है कि वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें देने से गुरेज करें। तेलंगाना हुकूमत ने गूगल के साथ हैदराबाद में AI एक्सेलरेटर कायम करने के लिए शराकत दारी की है। ज़राए ने बताया कि गूगल के साथ ताउन का मकसद AI स्टार्टअप सपोर्ट करना, ज़राअत, नक़्ल व हरकत, तालीम, पायदारी और गवर्नेंस समेत तमाम शोबों में AI सॉल्यूशंस की तरक्की को तेज़ करना है और इन तमाम मक़ासद को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने गूगल के साथ शराकत दारी की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सनत के वज़ीर डी श्रीधर बाबू की मौजूदगी में एक मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। रंगारेड्डी जिले के मुदगुला मंडल के देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने पहुंचे MLA कासिरेड्डी नारायण रेड्डी और MP मल्लू रवि के खिलाफ एहतजाज किया गया। ज़राए ने बताया कि कांग्रेस के MLA कासिरेड्डी नारायण रेड्डी और MP मल्लू रवि को देहातियों के एहतजाज का सामना रहा। वो रंगारेड्डी जिले के मुदगुला मंडल के तहत आने वाले देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने के लिए पहुंचे थे। ताहम लोगों ने इंतखाबी वादे पूरे न करने पर उन दोनों के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। गाँव वालों ने MLA और MP को तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने से रोक दिया। वो अपने हाथों में प्लाकार्ड थामे एहतजाज करते हुए नजर आए। उन्होंने मुतालबा किया कि अरविंद गांव को मंडल मरकज बनाया जाए और रिजर्वायर को बर्खास्त किया जाए। दरमियाना मुकामी लोगों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार और हाथापाई भी हुई। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी रिपोर्ट पेश कर दी गई। ज़राए ने बताया कि 13 फरवरी को राज्यसभा के बाद लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ JPC की रिपोर्ट पेश कर दी गई। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान बिल ऐवान ज़ेरी में पेश किया गया। रिपोर्ट पर हंगामे के अलावा अराकीन को कोई बयान देने का मौका नहीं मिला। अपोजिशन के जरिए रिपोर्ट से इख्तिलाफी नोट हटाए जाने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो जो भी जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। JPC रिपोर्ट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने लोकसभा में भारत माता की जय नारा बुलंद करते हुए रिपोर्ट पेश की। दीगर BJP अराकीन भी यही नारा लगाते हुए देखे गए, जबकि अपोजिशन अराकीन रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कुछ लोकसभा अराकीन ने उनसे मुलाकात की थी। उनके डिसेंट नोट्स को एनेक्चर में शामिल कर लिया गया है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने सर्वे में हिस्सा न लेने वाले अफराद से कहा है कि वो बगैर किसी शुकूक व शुबहात के ज़ातों के सर्वे में हिस्सा लें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से
सर्वे में हिस्सा न लेने वाले अफराद को एक और मौका फराहम किया गया है ताकि वो अपनी तफसीलात दर्ज करवा सकें। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ 12 लाख मकानात का सर्वे किया गया, लेकिन 3,56,000 मकानात का सर्वे नहीं हुआ जो कि GHMC हुदूद में है। उन्होंने बताया कि सर्वे की तफसीलात दर्ज करवाने के लिए एक और मौका फराहम किया जा रहा है। तफसीलात कैसे और कहां दर्ज करवानी है, अंदरून 2 यौम इसकी इतलात दे दी जाएंगी। आमिर अली खान ने सर्वे में हिस्सा न लेने वाले तमाम अफराद से दरख्वास्त की है कि वो इस सर्वे में हिस्सा लेकर अपनी तफसीलात फराहम करें। BC रिजर्वेशन के ऊपर ये तो हो गया ना, सर्वे हो गया है। 1 करोड़ 12 लाख घरों का सर्वे हुआ था। 3,56,000 घर छूट गए थे, जिसकी ज़्यादातर तादाद GHMC की है। अब GHMC में है वो तो ओल्ड सिटी ज़्यादा रहता उसमें, तो गवर्नमेंट की तरफ से पूछा गया था कि बढ़ाते नहीं बढ़ाते, इत्तेफाक से गवर्नमेंट फिर से एग्री करी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब जो 16 लाख लोग हैं जो छूट गए थे उनको एक चांस है इसमें अपना नाम इंदराज कराने का। कहाँ जाना कैसे जाना वो मॉडलिटीज़ 1-2 दिन में आ जाते हैं। वहाँ जाके जिसका घर छूट गया अगर उसमें कराएंगे तो कल के दिन गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है, चाहे वो बजट में हो या गवर्नमेंट की सरकारी स्कीमों में हो। इसलिए कि आप देखिए राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दिए थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी कहाँ मिलेंगी आपको, हुकूमत में तो नहीं मिलती, हुकूमत के स्कीमों में मिलेंगी। तो वो फ़ायदा उठाने का एक अच्छा मौका है जो लोग नहीं कराए। किसी किस्म का शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वैसे भी आधार कार्ड मारे तो आपके पूरी डिटेल हर एक को मिल जाते, तो कोई छुपा के आप अपने सीक्रेट रख ले रहे की बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी को जो अपना नाम नहीं दर्ज कराया, उन्हें जाके अगर दर्ज कराता है तो वो आगे चल के उनके मुस्तकबिल के वास्ते, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे कोई सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने की बात हो, कोई बजट की बात हो, कहीं भी कोई भी चीज़ में उन्हें फ़ायदा उठाने के वास्ते कल अपनी जेन्युइनिटी प्रूव कर सकते हैं। तो फिर से जो बच गए हैं लोग उन लोगों का सर्वे करेंगे तो उससे फ़ायदा उठाएंगे। ओल्ड सिटी की जब बात आए तो पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे आप? ओल्ड सिटी के लोग ये हैं कि बग़ैर किसी शक व शुबे के आप अपना नाम इंदराज कराइए। कॉलम नंबर जहाँ पे आपको रिलीजन पूछा गया वहाँ इस्लाम लिखिए। जहाँ अगर आप सिर्फ सैयद खान मिर्ज़ा शेख मिर्ज़ा नहीं हैं या BRS की MLC के कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर वो BC रिजर्वेशन के बारे में मुखलिस है तो कानून साज असम्बली में तालीम, मुलाजिमत और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात पर 3 अलग अलग बिल पेश करे। BRS MLC और जागृति कन्वीनर के कविता ने जुमेरात को जंगामा के फेम्बर्ती में अम्मावारी मंदिर का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया है कि अगर कांग्रेस हुकूमत BC रिजर्वेशन के बारे में मुखलिस है तो उसे कानून साज असम्बली में तालीम, मुलाजिमत और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात पर 3 अलग अलग बिल पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत BC रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को एक ही बिल में शामिल करके मरकज़ को भेजती है तो ये इंतहाई गलत होगा। के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के सर्वे में गलतियां पाई जा रही हैं और ये नतीजा अख़ज़ किया गया है कि BC का फ़ीसद सिर्फ 46 ही है और उसके मुताबिक BC के लिए तालीम और मुलाजिमतों में 46% रिजर्वेशन फराहम करने वाले 2 बिल पेश किए जाने चाहिए। के कविता का कहना था कि हुकूमत बिल पेश करके बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश कर रही है और सीधा अदालत जाने के बजाय मामलात को अदालती तनाज़ात में घसीटने की भी कोशिश कर रही है। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం బడుగు బలహీన వర్గాల బిడ్డలందరూ కూడా మేల్కొని మరి అందరం కూడా కలిసి ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత 13 ఏళ్ల కింద ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టాలని అడిగినటువంటి సంస్థ జాగృతి సంస్థ। ఆ తర్వాత ఎవ్వరూ మాట్లాడనప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో మరి బీసీలకు మీరు కామారెడ్డిలో డిక్లరేషన్ చేసిండ్రు, 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి ఉద్యమాన్ని పెద్ద ఎత్తున లేవనెత్తి అన్ని రాజకీయ పార్టీలని అందరినీ కూడా కలుపుకొని బీసీలలో పెద్ద నాయకులు గౌరవనీయులు కృష్ణన్న గారిని, వక్లాభరణం గారిని, అట్లానే జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారిని, అట్లా ఇంకా అనేక మంది పెద్దలందరినీ కూడా కలుపుకొని వారి సలహాలు సూచనలు తీసుకొని వి ప్రకాష్ అన్న గారిని మరి ముందుకెళ్తున్న సందర్భం మీరు చూసిండ్రు। ఇవాళ
జాగృతి సంస్థ చేసినటువంటి ఉద్యమాలు, ఒక బలమైన ప్రతిపక్ష పార్టీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గలమెత్తినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ చూసి భయపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు బిల్లు పెడతానని నిన్న చెప్పడం అన్నది మనందరికి కూడా గర్వకారణం. ఈ బీసీల బిల్ అన్నటువంటిది తెలంగాణ బీసీ బిడ్డల విజయం అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది తొలి విజయం మాత్రమే. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎప్పుడైనా మాట ఇచ్చి దోకా చేసేటటువంటి అలవాటు ఉంది. దోకా బ్యాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి బిల్లులో మనం 2-3 అంశాలు ఇవాళ ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం. ఇది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా విని ఆలోచన చేయాలి. ముఖ్యంగా ఇంటెలెక్చువల్స్ అందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఏమంటుంది ప్రభుత్వం? ఒకటే బిల్లు 42% పెట్టి దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించి చేతులు దులుపుకుంటామంటున్నారు. కానీ ఎన్నికలలో అట్లా చెప్పలే. 42% ఇస్తాం రిజర్వేషన్ అని చెప్పినారు. ఇవాళ మేము ప్రపోజ్ చేసేది తెలంగాణ జాగృతి నుండి ఏంటంటే, మీరు 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి. ఎందుకోసం 3 బిల్లులు పెట్టాలి? మీరు 46% బీసీలు ఉన్నారని చెప్పారు. మరి 46% బీసీ ఆడబిడ్డలైనా మగబిడ్డలైనా చదువుకోవడానికి విద్యలో 46% రిజర్వేషన్లతో ఒక బిల్లు పెట్టాలి. రెండవది 46% మరి ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఉద్యోగాలలో 46% రిజర్వేషన్తో ఇంకొక బిల్లు పెట్టాలి. పొలిటికల్గా వాస్తవానికైతే మీరు తప్పు లెక్కలు చేసినప్పటికీ వచ్చిన 46% పొలిటికల్ పెట్టాలి రిజర్వేషన్. కానీ మీరు 42 ఎన్నికలలో చెప్పిన కనీసం 42%తోనన్నా మీరు పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కోసం 3వ బిల్లు పెట్టాలి. ఎందుకు 3 సపరేట్ బిల్లులు పెట్టమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నామంటే, మీరు ఈ బిల్లులు అన్ని అంశాలు ఒకటే బిల్లులో పెట్టి కేంద్రం మీద తోసేసి చేతులు దులుపుకుంటే మీరు కేవలం మభ్యపెట్టినట్టయితే తప్పితే ఆ వాస్తవమైనటువంటి బెనిఫిట్ బీసీ బిడ్డలకు దక్కదు. నిజంగానే బీసీలు 46% కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు, 52% ఉన్నారని చెప్పి ఎప్పుడో కేసీఆర్ గారు చేసిన సర్వేలో తేలింది. కానీ మీరు అది కాకుండా తప్పు లెక్కలు చేసి 46 అన్నారు. మరి 46% ఉంటే जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर.